So here in the first question, solution for first, we have memory size as 128 KB. This implies 2 to the power 17 bytes. Okay, so our physical address will be of 17 bits. This whole will be of 17 bits. And block size is, let's say block size, I am writing BS, is 256 bytes, that is 2 to the power 8 bytes. So that means 8 bits are for offset and remaining 9 bits for tag. So that means this is 9 bits. And you know the tag directory is equal to tag bits multiply by number of Number of cache cache lines. lines. So we have to find the number of cache lines here. Number of cache lines is equal to cache size divided by block size. So that means cache size is what? 16 KB. So I can write 16 KB as 2 to the power 14 divided by block size 2 to the power 8. So it will give 2 to the power 6 or 64. So I can write it here 9 into 64 bits. It will be in bits. This is in bits. This is in byte. KB. KB. Okay. Unit is important. So don't write it as bytes, because here this is the number and this 9 is bits. And here the number of comparators. So I have told you the number of comparator is equal to number of cache lines here. Maximum. I think I have not written somewhere, but I have told here. See here how many lines? 1, 2, 3, 4. Similarly 1, 2, 3, 4 comparator. So the number of comparators will be the in equal to number of cache lines. Here we can write as number of comparator required is equal to number of cache lines. Okay, cache lines. So here how many lines are there? 64. So that's why number of comparator is required 64. Okay, how many of you have done it correctly? Can you raise your hand? Okay, good. Okay, let's do the another question. Second one is similar to this, 32 GB, 32 KB and 1 KB. So 32 GB, 32 KB and 1 KB. This is our memory, this is our cache, and this is our block. So memory is what? 2 to the power 35 bytes. Cache is what? 2 to the power 15 bytes, and block is 2 to the power 10 bytes. So simple now. This is 10, this total is 35, so this remain is 25. So 25 bits are required here. The answer will become 25 bits. The tag directory will be 25 into the number of lines, and number of lines will be, so we can calculate number of lines is 2 to the power 15 divided by 2 to the power 10, that is 2 to the power 5 or 32. So I can write it here 25 into 32 bits. And how many comparators are required? 32, because the number of lines equal to number of comparators. Okay, I hope this is not a problem now. Let's see the third one. Now in the third one we have cache size, block size and tag size. So let me write it here. Cache size is 512 KB. That means 2 to the power 19 bytes. Okay, and block size is 1 KB.
that means 2 to the power 10 bytes. And we have tag bits. Tag bits are already given to us, that is 17. Okay, and you know that the tag bits, see here, if there are 17 tag bits, uh, if there are 17 tag bits, that is equal to block number. Okay, in physical address, if this is block offset, then this is remaining one is block number. So I can say that this 17 bits are nothing but I can find out block number of blocks using this. Number of blocks is equal to 2 to the power 17. If 2 to the power 17 are number of blocks and one block is of 1 KB, so my memory size is equal to 2 to the power 17 into 2 to the power 10 or 2 to the power 27 or 128 MB. Or if you don't like this, then do like this. So 17 is this and block is this 10. So this will become 27 and we got this. But see, if you are writing like this 10 here, 17 here, this is plain ratta. But if you understood this that कि tag bits हमारी 17 है, तो ब्लॉक नंबर कितने होंगे 2 to the power 17 होंगे. और एक ब्लॉक का साइज अगर 1 KB है तो मेमोरी का साइज 2 to the power 17 into 2 to the power 10, ये हमारा 128 MB बन जाएगा. ये रट्टाफिकेशन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो रट्टाफिकेशन में आप नंबर पा सकते हो लेकिन वो लॉन्ग रन में नहीं चल पाएंगे, इसलिए उसको अवॉइड करिए. तो हमारे पास मेमोरी का साइज आ गया 128 MB. एंड नाउ नंबर ऑफ कैश लाइंस हमें निकालनी है. तो नंबर ऑफ कैश लाइंस देखो, यहाँ पे कैश साइज है 2 की पावर 9, तो नंबर ऑफ कैश लाइंस इज इक्वल टू 2 to the power 19 by 2 की पावर 10, दैट इज 2 to the power 9, क्योंकि हमने उसको ब्लॉक साइज से डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास 2 की पावर 9 और 512 कैश लाइंस आ गई. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 17 into 512 बिट्स. और 512 लाइंस आई हैं तो नंबर ऑफ कॉम्परेटर्स भी 512 चाहिए. किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? No, sir. Let's see the next question. This is interesting because only 2 values are available to us. हमारे पास सारी values available नहीं है. तो I'm rubbing this thing. Okay. I hope आप लिख रहे हैं नोट साथ साथ बनाते रहिए. अगर कहीं पे टाइम की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता दीजिए. I will slow down. Let's say the fourth question here. In the fourth part, the memory size is what? 16 GB. 16 GB means 2 to the power 34 bytes. यानी कि हमारा फिजिकल एड्रेस 34 बिट्स का होगा. Now we have block size as 4 KB. Block size is equal to 4 KB. That means 2 to the power 12 बाइट्स, यानी कि ऑफसेट 12 हो गया. और ये बाकी क्या बचा, जो बाकी बचा हमारे पास वो है 22. सो 22 बिट्स का हमारा टैग हो गया. तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं टैग साइज इज 22 बिट्स. ये बिट्स में आ रहा है सारा आंसर. ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड द कैश साइज एंड बाय यूजिंग कैश साइज हम नंबर ऑफ लाइंस निकाल लेंगे, क्योंकि कैश साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज इज नंबर ऑफ लाइंस. और फिर ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा. लेकिन कैश साइज निकालने के लिए देखो, यहाँ पे कैश साइज निकालने के लिए हमारे पास में नंबर ऑफ लाइंस होनी चाहिए थी, नंबर ऑफ लाइंस. लेकिन वो तो हमें गिवन है नहीं, नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट गिवन. और यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी बिट्स नहीं है जो हमें लाइन नंबर बताती हो.
लाइन नंबर हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे पास में या तो हम इसको टैग बोलते हैं और ब्लॉक नंबर बोलते हैं, इसको हम ऑफसेट बोलते हैं या फिर वर्ड बोलते हैं, वर्ड, है ना। लेकिन कैश लाइन नंबर हमारे पूरे एड्रेस में कहीं नहीं है, और अगर कैश लाइन नंबर नहीं है तो नंबर ऑफ लाइंस नहीं निकाल सकते और कैश साइज नहीं निकाल सकते। तो हियर वी कैन नॉट कैलकुलेट कैश लाइन, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। और जब ये कैलकुलेट नहीं हो सकता तो हम यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लाइंस क्या लिखेंगे, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, कैन नॉट कैलकुलेटेड। और जो यहाँ पे होगा वही नंबर ऑफ कॉम्परेटर होगा, तो वो भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सो हियर वी कैन ओनली कैलकुलेट टैग साइज। ऑप्शन में आपके पास में, क्वेश्चन के ऑप्शन में आपके पास में इस तरह से ऑप्शंस हो सकते हैं, 22 बिट्स एंड cache size is unknown. Okay. B, 21 bits and cache size is unknown. Or C, 22 bits and cache size is, let's say, वो बोल देंगे आपको कुछ मे बी 16 GB और समथिंग समथिंग, इस तरह से कुछ लिख के दे देंगे, आपको उसमें से आंसर निकालना होगा फिर। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर मैं एज्यूम कर लूँ, कुछ एज्यूम कर लूँ, नंबर ऑफ लाइंस मैं एज्यूम कर लेता हूँ, कैसे, नंबर ऑफ लाइंस लेट्स से 2 to the power 10 एज्यूम कर लेता हूँ, तो कैश साइज क्या हो जाएगा, 2 to the power 10 इंटू ब्लॉक साइज, और ब्लॉक साइज हमारे पास 4 KB है, 4 KB मतलब 2 की पावर 12, तो हमारे पास 2 की पावर 22 बाइट्स की हो जाएगी, दैट इज 4 MB। तो ये 4 MB भी हो सकती है, और मैं अगर इसको 2 की पावर 10 की जगह x मान लूँ तो ये 2 की पावर 12 प्लस x, और x कुछ भी हो सकता है एक्चुअली यहाँ पे। सो आई कैन से दैट दिस कैश साइज कैन बी एनी, कुछ भी हो सकता है कैश साइज। और जब कैश साइज कुछ भी हो सकता है तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या होंगे, नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगे, ये एनी डिवाइडेड बाय 2 की पावर 12, ये है ना 2 की पावर 12, तो ये x हो जाएंगी, ये मल्टीप्लाई x हो जाएंगी, इसीलिए हमने कहा इसको कि कैन नॉट गैस, और यहाँ पे भी x हो जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's go to the fifth part. Here we have 64 MB of the memory. 64 MB हमारे पास मेमोरी का साइज। let me remove this. हमारे पास मेमोरी साइज है 64 MB, दैट मीन्स 2 to the power 26 बाइट्स, और हमारे पास टैग बिट्स हैं 10, तो हमें ये गिवन है कि ये टोटल 26 है, टैग बिट 10 है, तो ये 16 हो गया, यानी कि ब्लॉक साइज विल बी 2 की पावर 16, और आई कैन से दैट 64 KB। तो यहाँ पे हम 64 KB लिख सकते हैं, यस और नो। नाउ अब 64 KB आ गया, देखो ऊपर वाला ही क्वेश्चन, हमारे पास ये गिवन था, ये हमने निकाल लिया था, उसके बाद ना तो ये निकाल पाए थे, ना ये निकाल पाए थे, और ना ही ये निकाल पाए थे। ऐसे ही यहाँ पे ये और ये तीनों अवेलेबल नहीं है। मैं फिर से समझा देता हूँ। लेट्स से हमारे पास कैश का साइज हम मान लेते हैं कि लेट्स से कैश साइज नहीं, कैश साइज क्या होगा, लेट्स से कैश लाइंस मल्टीप्लाई बाय ब्लॉक साइज, यही तो होगा हमारे पास, और कैश लाइंस हमारे पास 2 की पावर x है, तो ब्लॉक साइज क्या हो गया, और ब्लॉक साइज क्या है हमारे पास 2 की पावर 16 है, तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 16 प्लस x, और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है,
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एनी। और अगर ये 2 की पावर 16 प्लस एक्स है तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 10 इंटू एक्स, और यहाँ पे भी एक्स। इसीलिए हमने इसको बोला कैन नॉट कैलकुलेट, इसको हमने बोला कैन नॉट कैलकुलेट, द सफिशियंट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल विद अस टू कैलकुलेट इट। ओके, let's see the sixth one. This is also interesting. Sixth one, this was fifth. We have cash available, cash size equal to 512 kb, and we have tag bits available, tag bits equal to 7 bits. हमारे पास में देखो ये 7 गिवन है, ये गिवन नहीं है, हैड बीन, और ना ही हमारे पास ये टोटल गिवन है, क्योंकि मेमोरी साइज गिवन होता तब टोटल पता चलता। हैड बीन दिस इज एक्स, तो ये टोटल 7 प्लस एक्स हो जाएगा। और फिर कैश साइज से हम नंबर ऑफ कैश लाइन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कैश लाइंस, और वो क्या हो जाएंगी 2 की पावर 19, ये क्या है 2 की पावर 19 डिवाइडेड बाई व्हाट, कैश लाइंस, नंबर ऑफ कैश लाइंस इज कैश साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज 2 की पावर x। तो आई कैन से दैट 2 की पावर 19 माइनस एक्स, और x कैन बी एनीथिंग हियर, ओके, x कैन बी एनीथिंग, 1 KB, 2 KB, 10 KB, 1 MB, एनीथिंग यू कैन हैव। ओके, सो दिस इज 2 की पावर 19 माइनस 1, MB में नहीं होगा बिकॉज कैश साइज अगर KB में है तो ब्लॉक साइज तो ऑब्वियसली उससे छोटा ही होगा, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 19 माइनस एक्स, ऑब्वियसली 19 से तो छोटा ही रखना पड़ेगा ना, तभी जाके ये पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, नहीं तो नेगेटिव में या पॉइंट में तो वैल्यू नहीं हो सकती ना नंबर ऑफ कैश लाइंस की, इसलिए होगा तो केबी में ही, लेकिन केबी में या बाइट्स में कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ कैश लाइंस अगर हमारे पास ये आएंगी तो हमारे पास में नंबर ऑफ कॉम्परेटर्स कितने आ जाएंगे 19 माइनस एक्स, और मेमोरी का साइज क्या हो जाएगा, मेमोरी size is equal to number of blocks, that is 2 की पावर x multiply by size of block multiply by number of blocks, और number of blocks हमारे पास 7, 2 की पावर 7, that is 2 की पावर 7 प्लस x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7 प्लस x, ये हमारा मेमोरी साइज हो गया, है ना। ये नंबर ऑफ बिट्स जो टैग में होती हैं वही नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, और x क्या है हमारे पास, साइज ऑफ 1 ब्लॉक, और ये हो जाएगा ब्लॉक साइज 2 की पावर x, है ना। और नंबर ऑफ टैग डायरेक्टरी साइज क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 की पावर 19 माइनस एक्स, 19 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, और यहाँ पे भी x, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, कैन नॉट कैलकुलेट, कैन नॉट कैलकुलेट, कैन नॉट कैलकुलेट, कैन नॉट कैलकुलेट, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ वैल्यूज पॉसिबल। अब अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है आपके पास कैन नॉट कैलकुलेट, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट सम वैल्यू ऑफ x एंड चेक वेदर यू आर गेटिंग एन आंसर और नॉट। एक बार x की वैल्यू मिल जाएगी सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। कोई डाउट इसमें? सर नंबर ऑफ कंपैरेटर्स भी तो 2 की पावर 19 माइनस एक्स ही होंगे ना? नहीं बेटे, नंबर ऑफ कंपैरेटर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ लाइंस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यस 2 की पावर 19 माइनस एक्स, करेक्ट, माई मिस्टेक। एनी डाउट स्टिल हियर? No, sir. Okay, Sir? yes. Sir, if we are given memory size Mm-hmm. and cache size, then can we like find out everything else? कैश साइज एंड मेमोरी साइज, Memory size. नहीं कैसे निकाल लेंगे, देखो आप मेमोरी साइज अगर गिवन होगा आप कैलकुलेट करके देखो खुद से, कैश साइज अगर गिवन होगा मेमोरी साइज से आपको पता चलेगा टैग प्लस डी ऑफसेट, मैं इसको बोल रहा हूँ टैग बिट और इसको बोल रहा हूँ ऑफसेट, ठीक है, ये हमें पता चलेगा। और कैश साइज से हमें 2 की पावर x पता चलेगा, और x कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है t और t, x तो है ही नहीं। अब यहाँ पे अगर आप ब्लॉक साइज डाल दोगे, ब्लॉक साइज इज व्हाट 2 की पावर d, तो t भी निकल जाएगा, d हमारे पास गिवन है,
और 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 2 की पावर d विल गिव यू 2 की पावर l, वेयर l इज लाइन नंबर्स, ठीक है, तब सारी चीज़ें निकल जाएंगी। लेकिन अगर ये दो चीज़ गिवन होंगी तो सारी चीज़ें निकलना छोड़ो, कुछ भी नहीं निकल पाएगा। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट मैपिंग और एसोशिएटिव मैपिंग ये दोनों ख़त्म हो गई हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा सेट एसोशिएटिव मैपिंग, ठीक है, जिसमें 2 वे सेट एसोशिएटिव, 4 वे सेट एसोशिएटिव, वो सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, आप ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, जिन बच्चों ने रिकॉर्डिंग्स के लिए एक्सेस मांगा हुआ है उनको मिल जाएगा। मुझे वीडियोस को एडिट करना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट इसको स्ट्रीमलाइन कर दूंगा मैं जल्दी। ओके सर, थैंक यू एवरीवन।